So now you know how will you define prokaryotes? Can you define prokaryotes? Yes? Can you define prokaryotes? The prokaryotes are primitive and yes. karyomans. Prokaryotes are basically unicellular, having primitive nucleus or primitive genetic material, nucleus, and that primitive genetic material is called as nucleoid. That genetic material is nucleoid, okay, represented by bacteria. Now in your textbook they have given represented by bacteria, blue-green algae, but blue-green algae is again bacteria, okay, mycoplasma, which is again a bacteria, and they have mentioned one term, it is a PPLO. Can you see on page number 27 prokaryote cell के नीचे? Yes. Yeah, so PPLO, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं. So PPLO is again like mycoplasma. Okay, it is similar to mycoplasma, pleuropneumonia like organism. उसका full form दिया, highlight करके रखो, उस पे आपको questions आते हैं. So PPLO and mycoplasma, they are cell wall less organism. Okay, they are cell wall less organism. So these prokaryote जो है, they are varying in different shape and sizes. So ये prokaryotes के example है. Again you can mention this because अगर आपको list बना के देते falling is not a prokaryote or falling are prokaryotes, तो अलग अलग heading, though these are bacteria, but as your book mentioned under different heading, so you must remember. So bacteria, blue-green algae, mycoplasma and pleuropneumonia like organism, ये दोनों same है, they are cell wall less organism. Clear? You can write down the way PPT is presenting, or you can highlight and write down some extra point in your NCERT. Whichever way you feel comfortable. Shall I change the slide? Yes. So this is a blue-green algae. Okay, is a type of bacteria, but that is very important in nitrogen fixation. Okay, the plant which require nitrogen, so blue-green algae, Rhizobium, they are important in nitrogen fixation. इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले. Now you must remember they are the prokaryotic cell. इतना ही आपको एटलीस्ट यहाँ पे ध्यान में रखिए. Okay. The prokaryotic cell is generally smaller because they are prokaryotes, they are unicellular and multiply rapidly. Smaller the cell, greater is the efficiency. Okay. So यहाँ पे I will elaborate more than your NCERT. So basically bacteria, they are of different shape. So कौन से shape है देखिए bacteria में? There is a cocci shape. Okay, it is a rod shaped bacteria, it is comma shaped bacteria, and it is spiral bacteria. You can classify this in different heading. Cocci shaped bacteria, they are spherical bacteria. Okay, simple, they are the spherical bacteria. Right? Rod shaped bacteria, they are having the small stick like appearance. So are the rod shaped bacteria. Comma shaped bacteria, English or the grammar में आप जो comma डालते हो, that comma shape.
What is happening? Yes, so that is a curved rod or it is a comma shape bacteria. And spiral, it is a spiral shape. Spring जैसे होता है अपने पेन में, so spring shape, spiral shape, right? समझ में आ रही बात? Yeah, are you there? Yes, ma'am. Krishna, are you getting this? Yes, ma'am. हाँ, तो कोकाई मतलब ये बैक्टीरिया की शेप है एंड यू कैन ऑब्जर्व देम अंडर माइक्रोस्कोप इन दिस क्लियर शेप. ओके, कोकाई में नाउ आई वुड लाइक टू मेंशन हियर टू नेम्स बिकॉज यू विल गेट दिस टू नेम हियर एंड देयर इन सम टॉपिक्स. सो कोकाई शेप बैक्टीरिया, यू रिमेंबर कोकाई इन पेयर्स, हमेशा पेयर बना के रहेंगे. कोकाई इन ग्रुप, एटलीस्ट ये दो आप ध्यान में रखिए. बंचेस ऑफ ग्रेप लाइक क्लस्टर, तो कोकाई जो पेयर में है ऐसे वो पेयर बना के हमेशा रहते हैं. द नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया इज स्ट्रेप्टोकोकस. इसका फर्स्ट नेम स्ट्रेप्टोकोकस. सो फर्स्ट नेम इज कॉल्ड एज अ I was talking about कोकाई शेप, है ना. सो कोकाई, दो इसकी बात कर रही थी मैं. कोकाई विच इज इन पेयर, जो हमेशा पेयर में रहेगा, एंड कोकाई इन ग्रुप, जो बंचेस कैसे, अपना ग्रेप्स का बंच कैसे होता है, इरेग्युलर बंच, फिक्स नहीं होता है उसमें कुछ भी, है ना. कितने ग्रेप्स रहेंगे पता नहीं. दैट वे दिस कोकाई इज. इसका जो नाम है, यू रिमेंबर, इट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. अभी ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी मैंने क्यों बोला यहाँ पे, बिकॉज दिस यू विल गेट इन योर जेनेटिक्स टॉपिक. दिस यू विल गेट द ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज अ निमोनिया. जब आप इससे ई हटा दो ना, तो ये इसका इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया. और जब आप इस पे ई लगाते हो तो दैट इज द नेम ऑफ द स्पीसीज. सो बैक्टीरिया के और एनी साइंटिफिक नेम इज हैविंग टू नेम्स. वन इज अ जेनेरिक नेम, सो इसका ये जेनेरिक नेम है, ये जीनस है. एंड द अदर नेम, दिस निमोनी जो है वो स्पीसीज का नेम है. जीनस जो है दैट इज अ स्पीसीज नेम. क्या, व्हाट इज दिस इज अ स्पीसीज नेम. समझ में आ रही बात? गौतम, आर यू देयर? गौतम आज बोलत नाही काय, मूड नाही आज तुझा. गौतम, हॅलो हा, तू बोलत नाही आज, मूड नाही का आज तुझा अभ्यासाचा? मॅम, आवाज येतोय का? हा, येतोय ना मग. ओके, हे कळतंय का? जे पहिला जर नाव असतं ना, एनी सायंटिफिक नेम इज हॅव्हिंग, इट इज अ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर. बायनॉमियल हे परत आपण डिटेल मध्ये शिकणार आहे. बायनॉमियल नोमेनक्लेचर म्हणजे फर्स्ट नेम इज अ जीनस, सेकंड नेम इज अ स्पीसीज नेम, राइट? When you say it is a genus name, the first letter of the genus is always capital. Okay? And the first name of species is always small. Ha rule hai, this is iska rule hai, this is a universal rule. The first name of genus is always capital and the first name of species is always small. They are written, if you see in books, any scientific name, if you see in books, that is written in italic. Italic way में वो लिखा गया होता है. Now you can't write italic. So any scientific name when you are writing, it should be underlined when it is a binomial nomenclature. इस पे भी आपको questions आते हैं. Got this point? इस पे भी एक final NEET exam में question. Yes. Any scientific name is having two binomial nomenclature. This is universally accepted. Okay. But when you are writing the first letter,
of genus, it should be capital. The first letter of species is small. Generally when it is printed, it is italic, but हम लोग printed वे में अपने नोटबुक में नहीं लिख सकते, so we need to underline it, and that is the universal rule. आप यूएस में भी जाओगे, पढ़ोगे, वहां पे भी this rule is applicable there also, so that is called as a universal rule. Okay, so this Streptococcus pneumoniae, it is called as a scientist Griffith, जिसने जेनेटिक्स में काम किया था. अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी, बट यू जस्ट रिमेंबर ग्रिफिथ बैक्टीरिया. इस पे भी आपको क्वेश्चन आता है, ये हम काफी टॉपिक में करते हैं. व्हाई अगेन आई एम मेंशनिंग हियर, जस्ट टू रीइंफोर्स द नेम. सो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो नाम का बैक्टीरिया है, उसको बोलते हैं ग्रिफिथ्स बैक्टीरिया. ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट था जिसमें जेनेटिक्स में काम किया है. क्या किया वो हमको 12th में पढ़ना है, लेकिन बार बार इसका नाम आता रहेगा इधर उधर, इसीलिए आई एम मेंशनिंग हियर. दूसरा जो बैक्टीरिया है ग्रुप में जो रहता है, दैट इज अ स्टेफाइलोकोकस, और इसके काफी सारे स्पीसीज है. इसके भी काफी सारे स्पीसीज है. आई स्पेसिफिकली मेंशन हियर निमोनी बिकॉज इट इज इन योर सिलेबस. स्टेफाइलोकोकस में काफी सारे स्पीसीज है, उसको मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, जस्ट आई एम राइटिंग हियर स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज. बोथ ऑफ दीज आर द पैथोजेनिक बैक्टीरिया. पैथोजेनिक मतलब क्या? दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज डिसीज, मीनिंग अ पैथोजेनिक. पैथोजेनिक, पैथोजेनिक का मतलब क्या? ये डिसीज कॉज कर सकता है. सो पैथोजेनिक. समझ में आ रही बात? सो ये कोकाई बैक्टीरिया जो स्पेरिकल है, जो सर्कुलर, और मोर प्रिसाइजली यू कैन से स्पेरिकल. दिस यू कैन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप. यहाँ पे आप दो नाम, कोकाई मीनिंग स्पेरिकल, तो सफिक्स कोकाई आता है, तो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये स्पेरिकल बैक्टीरिया है. सेकेंड आई सेड इट इज अ रॉड शेप बैक्टीरिया. रॉड मतलब स्मॉल स्टिक लाइक अपीयरेंस, तो इसको, ये रॉड को बोलते हैं बैसिलस अल्सो. ओके, सो दिस इज अ बैसिलस. इसमें अ क्लासिक एग्जांपल इज योर ई कोलाई. ई कोलाई, दिस इज अगेन अ बैक्टीरिया. देखो मैंने कितने बैक्टीरिया के नाम आपको बताए. सो यू विल गेट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट, और बैक्टीरिया का नाम लिख देंगे. ओके, सो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई नेम ऑफ द बैक्टीरिया. नीट एग्जाम इज नॉट सीधी एग्जाम, बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी है, बट ये तुम्हारे बेसिक्स अगर क्लियर है तो आप जीत जाओगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है उसमें. ओके, सो ई कोलाई स्मॉल ऐसे रॉड लाइक बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई. एंड दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर बैक्टीरिया फॉर एनी एक्सपेरिमेंट. माइक्रोबायोलॉजी में कोई भी एक्सपेरिमेंट लेना है तो ई कोलाई को पकड़ लो. ई कोलाई, इसका रेप्लिकेशन भी काफी फास्ट है. ई कोलाई का 20 मिनट्स में ये एक सेल से 2 सेल बना लेता है, जस्ट इन 20 मिनट्स. ह्यूमन बींग्स को 9 मंथ्स लगते हैं, राइट? बट ये बैक्टीरिया देखो 20 मिनट्स में एक सेल से 2 सेल बना लेगा. इतना फास्ट इसका रेप्लिकेशन. एंड सो दिस बैक्टीरिया इज वेरी वेरी पॉपुलर फॉर एनी एक्सपेरिमेंट बिकॉज उसका रेप्लिकेशन एकदम फास्ट. ओके, क्लियर हो रही बात? बोर हो रहा है ये सब सुन के? या नहीं नहीं नहीं, बोर नहीं होते. नहीं होते ना? नहीं नहीं. प्रीशा, 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 आर यू देयर? यस. Prisha is not there. Okay, so that is a rod shaped bacteria. Okay, and very popular is E. coli. The third bacteria is a, which one? Comma shaped bacteria. Comma shaped bacteria. Comma matlab comma, or it is also called as a curved rod.
And the classic, only one example in this category is Vibrio cholerae. When you remove E, that will become the infection, cholera infection. जो cholera infection होता है, that is due to this Vibrio cholerae. E निकाल दो, name of the infection cholera. So this is a genus and this is a species, and that is only single classical example. इसलिए इस पे क्वेश्चन आते हैं. कॉमा शेप बैक्टीरिया कौन सा है? विब्रियो कॉलरा, एंड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कॉलरा इन्फेक्शन. ओके, एंड देन द स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, फोर्थ शेप इज अ स्प्रिंग लाइक स्पाइरल शेप बैक्टीरिया. इसका एग्जांपल इज अ ट्रेपोनेमा. ये भी आपको आगे आने वाला है, सो मैं यही पे बताती हूँ, सो वो भी आपको बार बार सुनेंगे तो ध्यान में रहिए. ट्रिपोनेमा पैलिडम, T capital, P small, genus name, species name, underline as we can't write in italics. And this Treponema pallidum is responsible for STD. आपको इस पे क्वेश्चन आते हैं. Which bacteria is responsible for STD, which is a spiral shape bacteria. Okay, so spiral shape bacteria which is responsible for STD. Now what is STD? Is this STD? It is a sexually transmitted disease. Yes, it is sexually transmitted disease. Treponema pallidum, and dreadful disease may lead to death. Okay, तो काफी sexually transmitted infectious agent आप सुनोगे. HIV आपको पता है, HBV आपको पता है, these are the viruses, but this is a bacteria. Again you get question, bacteria which is responsible for STD, तो उसमें से आपको वायरस कौन सा है एंड बैक्टीरिया कौन सा है, ये आइडेंटिफाई करना इसेंशियल है. क्लियर? सो आई हैव गिवन यू ऑलमोस्ट, कितने नाम दिए मैंने बैक्टीरिया के? 5 नेम्स आई मेंशन्ड हियर, है ना. कोकाई में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्टेफेलोकोकस, राइट. देन रॉड में आई मेंशन्ड ई कोलाई, राइट. कॉमा में विब्रियो कॉलरी, एंड स्पाइरल में ट्रिपोनेमा पैलिडम. यू कैन राइट इन योर एनसीईआरटी with pencil, or you can write in your note, and then you can make your final notes. Clear? Yes. Okay. So how many shapes of bacteria? यहाँ पे आपको आ जाएंगे अभी. 4 basics है. Bacillus, देखिए small stick like, coccus, cocci, spherical, Vibrio cholera, curved rod, and spiral like this shape. Interesting. And here you are studying just 4 shape. आप प्योर माइक्रोबायोलॉजी करोगे तो उसमें कम से कम 10 से 15 शेप हम लोग बताते हैं. यहाँ पे ओनली दिस शेप यू रिमेम्बर. बैसिलस मतलब रॉड लाइन, इसमें द क्लासिक एग्जांपल इज ई कोलाई. कोकाई में मैंने 2 बताया आपको, कोकाइन पेयर, एंड ये कोकाइन चेन भी होता है. यहाँ पे जो दिखा है ना कोकाई, मोतियों की माला जैसे होती है ना, वैसे चेन होता है इसका. So that again the different Streptococcus pyogenes. So forget, don't remember, तो बोर होते जाओगे. स्पाइरल में जो STD के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, which is a Treponema pallidum. Clear? Yes. Shall I change the slide? देखिए अभी इफ यू टर्न पेज नंबर 128, इसमें आपको इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं. टिपिकल, सी ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज गिविंग यू क्वेश्चन. जनरली आई गिव दिस क्या बोलते हैं होमवर्क, कि यू प्रिपेयर 10 क्वेश्चन, 10 MCQ टाइप क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ. यू विल अंडरस्टैंड each and every line of NCERT is giving you question. ये टॉपिक खत्म होने के बाद, after this topic get over, I will take 1
test on quizzes. More precisely, I'll say quizzes. Maybe on Unacademy, क्योंकि वहां पे जो पोर्टल, वो जो सॉफ्टवेयर उनका अवेलेबल है, वहां पे आई कुड गिव यू पोल फॉर 30 सेकेंड एंड मैं आपका मेरिट लिस्ट वहां पे लगा सकती हूँ. सो आई विल इन्फॉर्म यू अकॉर्डिंगली. बट देन यस, after I complete this topic, and one test I will give you to solve at home, which we will again mark it out of 360. Okay. So देखिए, typical, this is again given in your NCERT page number 128. You again highlight that. Typical eukaryotic cell का size animal cell में दिया है. Typical bacterial cell 1 to 2 micrometer. PPLO, pleuropneumonia like organism, 0.1 micrometer. Okay, and viruses. Generally, we measure viruses in nanometer. Okay, because it is 0.02. So again, 1 nanometer is equal to 1 nanometer is equal to कितने माइक्रोमीटर? और 1, I'll say 1 micro और 10 raised to minus 3 यहाँ पे 10 raised to minus 3 micrometer. Or reversely, if I write 1 micrometer is equal to 1000 nanometer. समझ में आ रही बात? मतलब ये कितना नैनोमीटर हो गया? 0.02 कितना नैनोमीटर हो गया? बोलो फटाफट. 10 raised to minus 2. 1 माइक्रोमीटर इज 1000 नैनोमीटर ना. सो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 कर दो ना. कितना हो गया? 2000 हो जाएगा. ये 2000 हो गया. 1000 मल्टीप्लाइड बाय बेसिक मैथमेटिक्स है ना बच्चा, पार्टी 0.02 20. हो जाएगा ना. 20 होगा ना. 20 to 200 नैनोमीटर. क्लियर? ये समझा कन्वर्जन? Yes. और ये 0.1 माइक्रोमीटर इज 200 नैनोमीटर, सॉरी 100 नैनोमीटर है ना. पीपीएलओ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो वायरस के साइज का है, एंड वायरस का मैक्सिमम साइज इज अप टू 200 नैनोमीटर. मिनिमम इज 20 नैनोमीटर. फाइंड आउट द साइज ऑफ कोरोना वायरस. उसका साइज कितना है? जस्ट फाइंड आउट द साइज ऑफ कोरोना वायरस. होमवर्क. कोविड-19 वायरस SARS-CoV-2 का साइज कितना है? राइट. सो जनरली प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल. जैसे मैंने बोला, प्रोकैरियोट को सेल वॉल होता है. एंड शॉर्टली यहाँ पे ध्यान में रखो, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन. लिखा. Prokaryotic cell wall is made up of peptidoglycan. Now we are talking about each and every part of bacterial cell. तो उसमें बैक्टीरिया का डायग्राम लास्ट टाइम भी हमने ड्रॉ किया था. चलो मैं यहाँ पे बैक्टीरिया का डायग्राम बनाती हूँ पहले. ओके, सो you also can draw with me, है ना. डिजिटल पेन है इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है डायग्राम. So also keep drawing with me, and I'll be very happy if someone is posting a good diagram on our WhatsApp group कि मैम देखो मैंने भी आपके जैसे कलरफुल डायग्राम बनाया. So I'll be very very happy.
What I said, label should be to the one side, और अगर नहीं तो you can use another side. So this is a, बोलो क्या है ये? Label this. What is this? Flagella. Yes, it is a flagella. What is this? Pili. Pili. Yes, correct. It is pili. All right. What is this? Cell wall. The Exactly. capsule. Cell wall. है ना? And what is this? Cell membrane. Yes, it is cell membrane. Okay, what is this yellow color? This is, मैं बता देती हूँ. Ribosomes. Yes, ribosomes. And this small, ये certain granules इसको बोलो, इसके बारे में मैं बात करूंगी. ये क्या है? What is this? Lysosomes. Yes, mesosomes. And this is the important part. Nucleoid. Nuclear. Nucleoid, genetic material, nucleoid or genetic material, which is very primitive, so prokaryotes. And बाकी all this is? Cytoplasm. Yes, cytoplasm. Okay, इतना सिंपल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है. Okay, now mesosomes. Folding, infolding, it is similar to mitochondria, huh? Similar to mitochondria in function. Respiratory mechanism यहाँ पे होता है. Okay, and ये जो है now we are talking, और इसके बाहर भी एक लेयर होता है. Which is that layer? बाकी सभी बैक्टीरिया में नहीं होता है, किसी किसी बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होता है. कैप्सूल का. Yes, कैप्सूल है ना. हाँ. सभी बैक्टीरिया में नहीं होता है, किसी किसी बैक्टीरिया में ही होता है. And which is a capsule. Okay. और एक स्ट्रक्चर that day I haven't drawn, but आज मैं आपको बताती हूँ. और एक स्ट्रक्चर inside the बैक्टीरिया होता है, वो भी सभी बैक्टीरिया में नहीं होता है, किसी किसी बैक्टीरिया में ही होता है. And this is called as a एंडोस्पोर. एंडोस्पोर. ओके, तो देखो ये मैं येलो से टिक कर रही हूँ. एंडोस्पोर, कैप्सूल, फ्लैजेला, पिलाई. ओके, इट इज माय पेन. एंडो काय म्हटलं तुम्ही मॅम? एंडोस्पोर दिसत नाही ना ते, मी त्याला डार्क कलर करू का? हाँ, नाही ठीक है. एंडोस्पोर. आणि ओसामा बिन लादेन माहिती का सगळ्यांना? माहितीये? लादेन माहिती का? लादेन. यू नो अबाउट ओसामा बिन लादेन? Yes or no? Yes. Yes. क्या था? कौन था वो? कौन था? Terrorist. Yeah, he was a terrorist ना. By profession he was civil engineer. ये terrorist लोग थोड़े ज्यादा उनका दिमाग चलता है निगेटिव साइड में. तो he was by profession civil engineer, but उसने बायो, हाँ तो इंजीनियर होता है, बट उसने बायो टेररिज्म क्रिएट किया था. जैसे अभी इससे मरे ना लोग कोरोना से, वैसे उसने बायो टेररिज्म में एंडोस्पोर यूज किया था. वेरी फ्यू बैक्टीरिया, 2 ही जनरा है बैक्टीरिया के. तो बैसिलस वाला ग्रुप बैक्टीरिया का है, और दूसरा जो है वो है क्लॉस्ट्रेडियम. ये 2 बैक्टीरिया है जो ये एंडोस्पोर बनाते हैं. और ये एंडोस्पोर thousands of years can remain alive without any nutrition. तो ओसामा लादेन ने क्या किया था? ये एंडोस्पोर का पाउडर बनाया, और बायो टेररिज्म क्रिएट करने के लिए he used to send the powder from postal services. अभी पोस्ट से कुछ अपने लिए एनवेलप आया तो हम लोग उसको खोल के देखेंगे ना, अरे क्या आया एनवेलप.
एंड वंस यू ओपन द एनवेलप तो वो सब स्पोर ऐसे बाहर आते थे. पीपल यूज्ड टू inhale that spore and they used to suffer from a disease. और वैसे उसने बैक्टीरियल डिजीज आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट कंपेयर टू फंगल डिजीज. ओके, एंड वैसे उसने बायोटेररिज्म किया था लादेन ने. सो ये हो गया निगेटिव रोल इसका. जैसे अभी काफी लोग बोलते हैं कि कोरोना छोड़ के चाइना ने बायोटेररिज्म क्रिएट किया. सो वैसे एंडोस्पोर से उसने बायोटेररिज्म क्रिएट किया. ओके, बट एनीवे मेरा कहना ये था कि एंडोस्पोर इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया. वेरी फ्यू बैक्टीरियल सेल इज हैविंग दिस एंडोस्पोर. उसमें से ये 2 ही जनरल है. राइट. So if you get a question, draw neat and label diagram of bacterial cell. So you need to draw this particular diagram. समझ में आ गया बैक्टीरियल सेल का डायग्राम? मैं इरेज कर दूं इसको? हाँ, सबने ड्रॉ किया होपफुली. यस. ओके, चलो. तो ये जो है बैक्टीरिया का स्टेप्स है एंड साइटोप्लाज्म है. देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. ये आप सबको पता है. जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड. दैट इज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दैट इज अ न्यूक्लियोइड, क्योंकि इस पे तुमको क्वेश्चन आते हैं. हाँ, एडिशन हमने प्लाज्मिड ड्रॉ नहीं किया उसमें. सो इन एडिशन इट इज हैविंग द प्लाज्मिड again which is not present compulsory in all bacteria, but then yes it is very very important in biotechnology, है ना. मैंने आपसे इसके बारे में बात की थी. सो प्लाज्मिड, ये बैक्टीरियल डीएनए एक होता है. प्लाज्मिड भी डीएनए होता है लेकिन वो अपना अपना अलग होता है. प्लाज्मिड डीएनए. ओके, सो यू आल्सो गेट क्वेश्चन, डिफाइन प्लाज्मिड. प्लाज्मिड क्या है, डिफाइन करो. सो प्लाज्मिड का डेफिनेशन लिखो. इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल genetic material, extra chromosomal genetic material which replicates by its own. ओके, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल. अभी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब क्या? क्रोमोसोमल डीएनए तो ये है, ये जेनेटिक डीएनए है. क्रोमोसोमल मतलब जेनेटिक डीएनए. ये जो है ये क्रोमोसोमल डीएनए है. राइट. क्रोमोसोमल डीएनए को छोड़ के एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कॉपीज है. जेनेटिक मटेरियल है विच रेप्लिकेट. तो ये अपना अपना खुद का रेप्लिकेशन खुद कर लेता है. ये किसी पे इस पे डिपेंड नहीं होता है. इस पे डिपेंड ये नहीं होता. सो इट इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल विच रेप्लिकेट्स बाय इट्स ओन. दैट इज व्हाट इज अ प्लाज्मिड डीएनए. समझ लिया? यस. Yes. व्हाट इज मीन बाय नेकेड जेनेटिक मटेरियल? जो हम लोग इतनी देर से एक्सप्लेन कर रहे थे कि उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है और ये सब कुछ नहीं है. ओके, सो जो जेनेटिक मटेरियल नॉट एनवेलप, दैट इज द नेकेड जेनेटिक मटेरियल. राइट. व्हाट आर प्लाज्मिड? तो ऑलरेडी हमने डिफाइन किया. एडिशनल और, लेकिन इस पे आपको थ्योरी में भी क्वेश्चन आते हैं. डिफाइन प्लाज्मिड. So this definition should go. Okay. इतना खत्म करते हैं, देन विल स्टॉप. प्लाज्मिड डीएनए कंफर्म्स यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक. जैसे मैंने बोला इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है बायोटेक्नोलॉजी. हम लोग कभी कुछ इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक ले लेते हैं, एंटीबायोटिक से रिकवर नहीं होते हैं, तो हो सकता है वो बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है. तो ये प्लाज्मिड एंटीबायोटिक से भी मरता नहीं है.
when you are sick, doctor gives you certain medication, उसमें एंटीबायोटिक्स भी होते हैं. अगर एंटीबायोटिक लेके भी कुछ इन्फेक्शन क्लियर नहीं होते हैं तो हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और उसमें ये प्लाज्मिड है. प्लाज्मिड वो बैक्टीरिया को बचा के रखता है ना. एवरी लाइफ इज स्ट्रगलिंग फॉर इट्स एग्जिस्टेंस. तो बैक्टीरिया भी एक लिविंग है, वो भी अपने एग्जिस्टेंस के लिए ट्राई करेगा. जब वो ट्राई करेगा तो उसके पास ये प्लाज्मिड रहेगा. तो दैट इज वन ऑफ द वेपन बैक्टीरिया कैन सस्टेन इन द एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन. जैसे एंटीबायोटिक दिया उसको. ओके, सो दैट इज द रीजन प्लाज्मिड्स आर इंपॉर्टेंट. इसके बारे में हम डिटेल करेंगे. ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स. इट इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. राइबोसोम्स आर प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोट. इसमें 70s स्वेटबर्ग यूनिट, इसमें होता है वो 80s. राइट. मेसोसोम जो सिर्फ प्रोकैरियोट में होता है. ओके, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ओनली ऑफ प्रोकैरियोट्स. Characteristic only of prokaryotes. Mesosome. Important point. Which cell organelle present in both prokaryotes and eukaryotes? बोलो. Ribosomes. Yes, it is ribosome. है ना, हे आता कळायला लागलं. Good. What are mesosomes? Membrane extension into cytoplasm. Definition येते. This is important for definition. What are mesosomes? So they are the membrane extension into cytoplasm are mesosomes. कळलं ना मेसोसोम काय, त्याचा रोल आपण बघणार आहे. आणि बाकीचं आपण आता सेल वॉल आपण उद्या सुरू करू. सेल एनवेलप जे काय आहे 3 प्रकारचे, त्याच्यातला आपण आधी सेल वॉल करू. बिकॉज सेल वॉल इज प्रेझेंट इन ऑल बॅक्टेरिया. नंतर आपण प्लाझ्मा मेम्ब्रेन करू बिकॉज अगेन इट इज प्रेझेंट इन ऑल बॅक्टेरिया. ग्लायकोकॅलिक्स एक्सेप्शन्स. इन सम ऑफ द बॅक्टेरिया ओनली दिस ग्लायकोकॅलिक्स इज प्रेझेंट, नॉट इन ऑल. So tomorrow we'll start this very important topic, detailing of cell wall of bacteria. Clear? Yes. Shall we stop here? Okay, ma'am. Okay. Yeah. Chalo, thank you and goodbye. Bye. Take care. Yes, take care of yourself. Thank you.